Hello, I'm Saise Hornbill TV laga Morning Pulse Bulletin. Ajilaga Kupreniga Janadia se. All party delegation laga Group 2 Kunkan Ija Belgium dia se. Tadi laga member AIADMK M Thambi Durai Bragushiki. European Parliament laga 27 state members kan luko Taikan Bra low paishe. Aru Pakistan laga terrorist activities kandu Janadishe. European Parliament pra India Sorkar laga initiative to support Kurishe. Party delegation ge inika patha nimite. In English, it's an opportunity, great opportunity. Our Indian delegation have happened to meet nearly 27 countries of the European Parliament members of the various Parliament members come over here. Brussels is the headquarters for that organization. That is called European Parliamentary. That is a system. In that, all the many Parliament members of the various countries, they have come over here. Therefore, we expose about the trusted activities of the Pakistan, especially you know very well, UN also accepted 52 terrorist camps are there. The terrorist camps are used to especially not only India to discipline Indian country and also in killing the innocent people. It is also happening throughout the other parts of the world. America also faces this problem, and then England, Belgium, in the like that, these countries also face this kind of terrorist problem. These terrorists having a connection with the Pakistan people. That is the particular thing. Therefore, these 27 countries who assembled here and they also realized that Pakistan is a very military state. They are not. There is no democracy there. They are creating terrorist activities to devastate not only India. Other countries also going to face the problem. This is what our Indian delegation, which sent by our Honorable Prime Minister Modi ji, we explained to all these people. They are also condemned the Pakistan attitude and also giving support to the initiative what India is taking this delegation. That is more successfully we are doing this kind of program. That is a diplomacy of Modi ji is successful sending this kind of delegation. We are happy that India's message will go throughout the world. That is the opportunity we had. India laga External Affairs Minister S.G. Shankar Bra Jagali, India Central Asia Business Council laga meeting day, Central Asia laga country kan ge matina, kushi taiken business kuria bishi kurubule lage, bishi option tagibule nimite. There's already, I think, a recognition in each other's countries, in each other's economies, of the players and of the products. But we must build further on that foundation. And a very good example here is actually of the pharmaceutical sector. Two, we need to diversify our trade baskets so that all of us have more options, we have more competition, and in a way we are looking for new opportunities. And I would like our friends from Central Asian economies to appreciate that an economy today which is bigger, which is in excess of $4 trillion, which is growing at 6 to 8% annually, it will create new demands for products, for services, and even I would say in a way new demands out of more prosperous lifestyles. So there are many things we could be doing, we should be doing, which perhaps we have not looked at in the past. So this looking beyond the currently traded goods and services is essential really to envisage and realize new opportunities. And the third is that we need to introduce greater sustainability and more predictability in our economic interactions. And that means more long-term contracts and arrangements, cross-investments, joint ventures, and certainly sectors like energy, whether we are talking uranium, whether we are talking crude oil, even potentially gas, whether we are looking at mining, if you are talking about coal, or if we are discussing fertilizers. I think these are all relevant examples to reach really long-term understandings between us. Ito humoy Kazakhstan laga Deputy Prime Minister aru Minister of Foreign Affairs
Murat Nurtlio Pragushi, India do iti सबसे टेस्ट pra agire economy ase aro Kazakhstan do tayar ase India laga long term partner hoina Viksit Bharat program under day goal achieve kan global limit. So that's a very important subject. And let me start by saying that we have very liberal laws when it comes to skilled labor immigration. There's the opportunity card. There is, easy visa processes when you have a contract with a German employer. So I think on the skilled labor field, we are very, very good, and we are also very performing. What is of interest to us is when it comes to the higher education. We have 50,000 Indian students in Germany, which is the biggest non-German group at German universities. And we want to increase this number, and we want to increase it specifically in one area, namely in the top universities area. Now, we have, our experience with Indian students is excellent. We have a very, very good experience with an ambitious, industrious, and very courageous bunch of people from this country who really make it or will make it after graduation, and have also the opportunity to get jobs after graduation. Now, when you see what happens in the world, you see, the US being much more difficult with student visa. You see, people's background being checked in the US. I can state only very firmly that, that these ambitious, smart, and industrious students are very welcome in Germany. They get a first-class education, above all in technical subjects or in STEM subjects, but at a much lower cost than in the US. So I think what my encouragement is that the smart and ambitious students of India who really want to get a top-class education, and if you don't get what you want in other parts of the world, focus on Germany. Language is not an issue. The courses are taught in English, and the fees, the universities' fees are very low. Now, at the same time, I have to say that we see that agencies here in India are aggressively recruiting students for colleges in Germany that are non-German colleges. Colleges that are private, coming from other countries, third countries, the UK, Poland, Italy, and they, after graduation, do not produce a German diploma. It's a British or Italian diploma. So we are very concerned that these colleges charge a lot of money. People really pay a lot of money for an education that is not to be compared to the education that state-owned and state-run universities offer, which is much cheaper and much better. So I would say that I would encourage every student in India to look first and foremost to the state-owned and state-run universities in Germany to check whether they have something which interests them. It is by far the better choice, by far the better choice. Indian students kan bra Germany de buri thakya oporde German ambassador to India Dr. Philipp Ackermann Bragushi Germany de 50,000 Indian students kan ase kundu German universities de non-German group सबसे dangor wala ase aro edu laga number do bishi kurubule mon ase universities area de. The Indian business community is at the forefront of innovations and plays a crucial role in global efforts to ensure sustainable growth and prosperity for all nations. Kazakhstan is firmly committed to deepening its comprehensive ties with India, which is our key strategic partner in the South Asia and far beyond. Our forward-looking relations are deeply rooted in common history, strong culture, and economic ties. So, political-wise, we are like-minded countries. Business-wise, we are natural partners. Despite last year's bilateral trade decreasing down to $1 billion, we have all opportunities to get back on track to increase it up to $3 billion in the nearest future. During the same period, Indian overall investments in the Kazakh economy grew by a remarkable 41%, surpassing $500 million in 2024. Yet, we believe this is the only tip of our huge potential, especially on the background of our
nation's indispensable role in many strategic areas. Kazakhstan is well positioned to boost up natural synergies with India in trade, connectivity, critical mineral dialogue, energy security, digital sector, and humanitarian ties. India is currently the fastest growing economic powerhouse, and according to some experts, very soon your country can become the third largest economy of the world. Kazakhstan is ready to be a reliable long-term partner for India in achieving its ambitious goal under the Viksit Bharat program by increasing supplies of strategic energy resources, steel and metals, rare earth minerals, food and agricultural products. Thus, we see enormous advantages from the development of the North-South International Corridor as proposed by Kazakhstan's President, Mr. Kassym-Jomart Tokayev, at the first C5 India Summit in 2022. Delhi Circuit Court lokapte Gunaba inmate Khan Jagra Guralaga case over South Delhi Additional DCP Sumit Kumar Bra Kushe Ki Taikan Bra Idulaga Kubar Paina Dikipashiki Action Laga Matbi Bishi Biabra Lakina Taisha Iniga Huina Jogum Manuke Ames Trauma Center de Louis Jadu Murishiguna Chana Edisha. सामने नहीं आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन इस पॉइंट पे चल रही है, लेकिन अभी उनमें क्या झगड़ा था, क्या उनका झगड़ा था, ये अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ झगड़ा हुआ, दो में से एक की मौत हुई, वो मैं बता दूं कोई हथियार यूज नहीं हुआ, वहाँ पर हो भी नहीं सकता, लॉकअप में थे वो दोनों, लॉकअप में कोई हथियार ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन दोनों में झगड़ा हुआ, वहाँ पर एक टॉयलेट के लिए एक दीवार बनाई होती है उसे सेपरेट करने के लिए, वो दीवार उसमें से एक के सर पे लगी और उसकी में से एक की मौत हो गई। नहीं, सिक्योरिटी लॉकअप में मैं बता दूं हमेशा पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो इन कैदियों को ऊपर कोर्ट में ले जाते हैं, वो भी होते हैं, वो सारी चीजें वहां पर थी, लेकिन जब इन्हें जहां पर हम बंद करते हैं वहां पर सबको एक एक अलग सेपरेट केस में बंद करना बहुत मुश्किल है। जेल वैन में भी इकट्ठे ही आते हैं, यहाँ पर भी स्पेस एक ही रूम में बंद किए जाते हैं, डिफरेंट रूम में, तो एक रूम में 10 से 20 कैदी होते हैं, तो वो जितने झगड़ा हुआ पता लगा कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड ये हुआ जब तक पुलिस को पता लग पाया, जब तक वहाँ पर पहुंचे, हालांकि वो टाइमली पहुंच गए थे, उस इंजर्ड को वहाँ से उठाया गया, लेकिन जब तक हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी डेथ हो गई थी। नहीं, पहले साकेत कोर्ट में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। दिल्ली के बेंगलुरु दे स्टैम्पीड हुई मनुबिशी मुरिया पिछे बीजेपी लगा लीडर्स कान ब्रा कर्नाटक गवर्नमेंट कुंडू कांग्रेस ब्रा जुलाई से टैकन गे क्रिटिसाइज करीना चीफ मिनिस्टर के भी रिजाइन करले मांगिया दे कांग्रेस लीडर्स पिछे ब्रा कैसे की अलग स्टेट खान भी इनका हादसा हुई मनु लगा जान हराई दिया लगा से कुंडू कुन भी आवाज उठाने सीनियर कांग्रेस लीडर हरीश रावत ब्रागुशी की निमिदे बीजेपी ब्रा इकू क्वानाई इनका हादसा कोआ एमबी और अलग जगह दे वन टाइम दे इनका हादसा टेम्पल्स कान बिशी दे हुई सब मनुबी मंतु से इन्वेस्टिगेशन कमिटी भी बनाई कांग्रेस लीडर और आगे 40 का सीएम था भूपेश भागल प्राबी कुशे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन दे स्टैम्पीड हुई मनु लगा जान हराई दिया टाइम दे बीजेपी लीडर संबित पात्रा ब्रा एकू क्वानाई ताई रेलवे मिनिस्टर के भी रिजाइन करले मांगी बोले लगे आगुशे तरह से भगदड़ मची लोगों हाँ, की वो हुई, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, भाजपा ने ये बात गोवा में, मध्य प्रदेश में, दूसरे स्थानों पर लागू क्यों नहीं की ये स्टैंड? वहाँ तो मंदिरों में भगदड़ मची, तो अब ऐसे यार्डस्टिक नहीं बना सकते हैं। फैंस हैं, अब जहाँ हजारों की संख्या में आना था वहाँ लाखों की संख्या में आ गए, और फिर क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों को तय करना है। सरकार ने जो व्यवस्थाएं कर रखी थी वो व्यवस्थाएं फेल हो गई, अनुमान से बहुत ज़्यादा आ गए, और सबको दुख है उस बात का, सबको दुख है, और राज्य सरकार को भरपूर मदद करनी चाहिए जो ऐसे परिवार हैं, और न्यायिक जांच बिठा दी है चीफ मिनिस्टर ने। सर, कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है और सिद्धरामैया को भी गिरफ्तार किया है। मानसिक रूप से पैदल है। दिल्ली में जब रेलवे स्टेशन में भगदड़ हुआ तो रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा था क्या संबित पात्रा? मांगा। पहलगाम में 26 लोग की मृत्यु हो गई, गृह मंत्रालय सुरक्षा देने में नाकाम रहे, तो संबित पात्रा जी गृह मंत्री से इस्तीफा मांग ले, रेलवे मंत्री से इस्तीफा मांग ले, है ना। उसके बाद बोले ये बेहद जो कर्नाटक में बेंगलुरु में जो घटना घटी वो बेहद दुखद है, और पूरी संवेदना मृतकों के प्रति
श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। और न्यायिक जांच की घोषणा हो गई है। अभी तो भाई 22 अप्रैल की घटना है ना? कौन सी जांच चल रही है, उसे क्या रिपोर्ट आया, सुरक्षा में चूक क्यों हुई, क्यों उसको मेडिकल सपोर्ट क्यों नहीं मिला, और वहाँ एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस को उतारने बजाय एचएम क्यों उतरा पहलगाम में। यहाँ तो कम से कम तत्काल आपने जांच की घोषणा कर दी, पहलगाम में जांच की घोषणा नहीं है। तो संबित पात्रा जी पहले इनके बारे में उत्तर दे। यहाँ तो जांच शुरू होगी, उसकी जांच। World Environment Day जगह अलग अलग सब डे मनाए थे निशना इटुलगा दिन डे एक पेड़ माँ की नाम कैंपेन अंडर डे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल और इटाली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर एंटोनियो टाजानी ब्रा सैपलिंग्स लगाइशे इटुलगा दिन डे मिनिस्टर गोयल ब्राकुशे अमा लगा नाम ब्रा खास लगा दो अमा गने मोरम और नेचर लगा अवेयरनेस दो उठाई दे अमा गने खास लगा कैंपेन ब्रा एनवायरनमेंट डे बिशी बहाल इम्पैक्ट को बोगना कुछ एक पेड़ माँ के नाम ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मिशन लाइफ के अंतर्गत शुरू किया था। कल्पना भारत में तो बहुत ही तेजी से लोगों के बीच में आकर्षण कर रही है। युवाओं में, युवा युवतियों में, विशेषकर बच्चों में एक माँ के नाम पे लगाया गया पेड़, उसके प्रति श्रद्धा, उसके प्रति प्यार बढ़ता है और पर्यावरण के बारे में जानकारियां भी एक छोटी आयु से जब बच्चों को आएगी उसका बहुत लाभ सभी ने महसूस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर एक आह्वान किया है कि पूरे विश्व में हम सभी को प्रोत्साहित करें कि सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आप कल्पना करिए 700 करोड़ लोग विश्व के अगर एक एक पेड़ लगाते हैं अपनी माँ के नाम, विशेषकर बच्चों में ये संवेदनशीलता छोटी आयु से आती है तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पर्यावरण पे होगा और ये चेतना जगेगी पर्यावरण के प्रति हमें कैसे सबको मिलकर काम कर रहे हैं और विश्व को एक उज्जवल भविष्य देना है। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और आज हमारे बीच इटली के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर स्वयं मेरे साथ उन्होंने पेड़ लगाया अपनी माँ के नाम पे और मैं उम्मीद करता हूं कि इटली में भी ये एक मूवमेंट के रूप में आगे बढ़े। ये हर एक इटालियन के दिल में हम बिठाएं कि हर एक व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम लगाए और जितना प्यार माँ से मिला और जितना उन्होंने प्यार अपनी माँ को दिया उसी प्रकार से ये पेड़ भी बड़ा होके एक ऐसा वृक्ष बने जिसकी छत्र छाया में सबका जीवन भी अच्छा हो और भारत और इटली के बीच के संबंध भी और मजबूत हो। मणिपुर सेनापति डिस्ट्रिक्ट डे डेप्यूटी कमिश्नर IAS मामुनी डोलेब्रा एक बेर माँ की नाम लॉन्च कर दिशे सकलिम क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल दे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दुनिया सब डे मनाई थकिया समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रा इटु लगा कैंपेन दु नेशन वाइड लॉन्च कर दिशे मणिपुर डे सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन ब्रा ऑर्गेनाइज करा प्रोग्राम दे सेनापति DC ब्रा लीड करना डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शंगम S आरो सकलिम क्रिश्चियन स्कूल लगा प्रोप्राइटर ब्रा बी ट्री प्लांटेशन दु पार्टिसिपेट करिसे प्रोग्राम ने DC ब्रा गुटा करिसे आरो कुशी के एक पेड़ माँ की नाम लगा कैंपेन दो अमा एक्शन ब्रा बचादे साइ किना तंगोर कुरी जानिशना आसे इदु गने सब मनुगे एनवायरनमेंट कने भाबिना प्लास्टिक्स चलावले कम दे कोले एनकरेज करिसे प्लांटेशन ड्राइव डे 3150 सैपलिंग्स लगाइसे कुंडुदो सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन ब्रा टोनी करिसे गवर्नमेंट ब्रा पॉपुलेशन सेंसस 2027 ब्रा शुरू करले क्वापोर BJT लगा MB माजी बुला खान ब्रा गुशे लेकिन इदु पहिला ब्रा माकिना आहियासे आरो सरकार ब्रा मानि लैसे किन्तु इदु शुरू करिया पिछि देरी होइसे आरो आहिया दिन 4 महिना ब्रा शुरू करले लागिया होइसे
देखिए, ये सेंसस के बारे में और कास्ट सेंसस के बारे में बीजू जनता दल का बहुत दिन से डिमांड था। जब नवीन बाबू उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे तब से हमारा डिमांड होते आ रहा है कि सेंसेक्स हो, कास्ट सेंसेक्स हो, जाति जनगणना होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हमारे देश में हैं, उसके हिसाब से ही उनका डेवलपमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये हमारा बहुत पुराना डिमांड था, भले देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने उसको मान लिया है। लेकिन मेरा मानना है कि 2027 से जनगणना शुरू होगा, सेंसेक्स होगा, ऐसा कुछ पेपर में न्यूज में खबर हम लोग पाए। तो इतना देर क्यों करा जा रहा है? इतना देर करना नहीं चाहिए, जितना जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए। 2027 में अगर शुरू होगा मार्च के बाद, तो फिर कंप्लीट कब होगा? 2029 में फिर चुनाव आ जाएगा, तो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मेरा डिमांड है जितना जल्द हो सके 2-3 महीना 4 महीने के अंदर ही इसको शुरू कर देना चाहिए। नेचुरली डिलिमिटेशंस का अगर सेंसेक्स के बाद ही हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके करेंगे। तो 2029 चुनाव जैसा कि रिजर्वेशन भी है महिलाओं के लिए, वो लागू कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें फिर देरी होगा, फिर 34 तक चले जाएगा। महिलाओं का रिजर्वेशन 34 तक नहीं हो पाएगा। देर करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बहुत जल्द होना चाहिए। पार्लियामेंट में भी आने वाला है, सब उठाएंगे? हाँ, देखिए, अगले जुलाई महीना में हमारा पार्लियामेंट हर साल बैठता है, इस साल भी हमारा पार्लियामेंट सेशन होगा। तो हम तो जो भी हो उड़ीसा के स्वार्थ के लिए हमारा लड़ाई करेंगे, लड़ाई जारी रखेंगे। जो भी उड़ीसा के स्वार्थ के बारे में होगा उसको जरूर हम लोग उठाएंगे पार्लियामेंट। जम्मू एंड कश्मीर रे खतरा ब्रा श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन दो जून 7 ब्रा पुला शुरू कर से किंतु मनुकन फुई लग्यान मेरे जागली चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ब्रा गुशे इगु फुई लगियोले नाइगे मने सिक्योरिटी भाल ब्रा साइना से ताइ गुशे इदु साल टूरिज्म दो जाइसे किंतु अहिया समर दे टूरिज्म भाल होबले आखा से गुशे चेन्नई दिबो आजीपीएम मोदी ब्रा जेके लगा सबसे बुला वंदे भारत ट्रेन फ्लैग ऑफ करबले से। सिक्योरिटी चैलेंज कितना है, क्योंकि कई सारे टनल्स हैं, कई सारी ऐसी कोई नहीं, आप सिक्योरिटी हम डील कर लेंगे ना, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इससे पहले भी सिक्योरिटी के इकदाम उठाए। पूरे कश्मीर में जो है ट्रेन चली और बिल्कुल ठीक चली। संगलदान तक ट्रेन आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। कटरा तक ट्रेन चलती रही। अब जो कटरा और संगलदान के बीच का हिस्सा है उसको भी हम संभाल लेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो समर्स हैं इसमें टूरिज्म का नंबर बढ़ सकता है। बदकिस्मती से ये समर जो है ये तो गया, इस समर से हमें ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगले साल के समर की तो बिल्कुल उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा भी है, क्या कहेंगे यात्रियों के लिए आने वाले? मैं चाहूंगा कि यात्री आएं, बड़ी तादाद में आएं, हमारी मेहमान नवाजी का एक तो फायदा लें और दर्शन करें और सही सलामत यहाँ से वापस जाएं। ये हमने पहले भी हमारी कोशिश रही है और इस बार भी एक कामयाब दर्शन जो है और कामयाब यात्रा करके दे देंगे। ट्रेन यहाँ से श्रीनगर जाएगी, हिस्टोरिक इस दिन का अब अगर मैं ये कहूँ कि बहुत अरसे से इंतजार था तो शायद कम होगा। इस रेल की शुरुआत तब की गई थी प्रोजेक्ट की जब मैं स्कूल में था, शायद 7वीं या 8वीं जमात में। आज मेरे बच्चे भी स्कूल और कॉलेज छोड़ के अब काम कर रहे हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार हम उस मरहले पे पहुंच गए हैं जबकि वज़ीर आज़म साहब आके यहाँ से उस रेल का उद्घाटन करेंगे और इससे हम सबको फ़ायदा होगा। जहाँ हाईवे बंद होने की वजह से हमारा सामान रुक जाता है, लोगों का आना जाना रुक जाता है, जहाज़ वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जैसे ही हाईवे बंद हो जाता है, जहाज़ वाले जो है 5,000 की टिकट हमें 20,000 में बेचना शुरू कर जाते हैं। वो सारा सिलसिला रुकेगा। हमारा जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सेब हैं, चेरी हैं, बाकी जो हमारा मेवा है, उसको भी हम सही तरीके से बाज़ार तक पहुंचा पाएंगे। और
अच्छी बात है। सर ये कितना बड़ा गेम हाईएस्ट चेंजर आप ब्रिज समझते है, हैं? एक मार्वल है, एक हाईएस्ट ब्रिज जो है इंजीनियरिंग मार्वल है, और अंजीगढ़ ब्रिज ओनली केबल स्टेड ब्रिज इन द कंट्री। नहीं, इस रेल प्रोजेक्ट ने बहुत रिकॉर्ड सेट किए हैं, और दो का तो आपने अभी नाम लिया। चिनाब ब्रिज जो है वो पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे ऊंचा जो है रेलवे ब्रिज है। मैं खुद वहाँ से होके आया हूँ, नीचे देख के बंदे को डर लगता है। जो अंजी ब्रिज है, केबल स्टे लॉन्गेस्ट जो है रेलवे का मुल्क में, और ये प्रोजेक्ट जो है इतने सुरंग, इस खासकर कटरा और बानिहाल को जोड़ने का जो हिस्सा है वो ज़्यादा सुरंग का है बनिस्बत के Ida ni mana se Saidi Bihon Bill TV.